السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ مدرسے کا ماڈرنائزیشن کرنا کس حد تک فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اس کا ہم نے پہلا حصہ کل آپ کو پیش کیا تھا، اس پہ جو بات کی تھی اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ میں نے کل یہ بات بتائی تھی کہ یہ دو نظریے الگ الگ ہیں، ایک سر سید احمد کا نظریہ ہے اور ایک جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ جب اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے ان دونوں نظریوں کو سامنے رکھیں گے، پھر اس کے بعد میں نے بات بتائی کہ اس میں 4 طریقے کے لوگ الگ الگ طریقے سے اس بات کو سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلا گروہ یہ سوچ رہا ہے جو خیر خواہ ہے کہ یہ مولوی لوگ جو فارغ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی خیر خواہی ہے، بھلائی چاہتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم کے اثرات جیسے مرتب ہونے چاہیے نہیں ہو رہے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کو یہ ہے کہ ان کی اکنامک جو ہے وہ بہت خراب رہتی ہے، معاشی حالت خراب رہتی ہے۔ اور دوسرا گروہ اس میں منافقین کا ہے کہ جو ہم کو برباد کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم لے کر کے آنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ اس میں اس کامرشل لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نظریہ اگر اترا ہے تو اس کو کیش کرایا جائے۔ اس میں کچھ لوگ مخلص ہیں اور کچھ لوگ ٹوٹل کیا ہیں، کامرشل ہیں۔ اور چوتھے لوگ اس پہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے سادے لوگ ہیں اور جو لوگوں کی باتوں سے فوراً کیا ہوتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اندر لکھنے یا بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ پھر اسی بات کو اپنا نام لے کر کے میڈ ان فلاں کر کے وہ بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ 4 گروہ میں سے جو سب سے پہلا گروہ ہے، ہم نے اس کے بارے میں آپ سے بات کی کہ وہ ہماری معاشی حالت کی وجہ سے، ہاں پھر یہ بات ہوئی کہ آخر یہ نظریہ پیدا کیوں ہوا کہ مدارس کو ماڈرنائزیشن ہونا چاہیے۔ تو پیدا ہونے کی جو پہلی وجہ خیر خواہوں کی ہے، ان کا یہ ہے کہ معاشی حالت ان کی ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ ماڈرن ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس مسئلے کا حل بتایا کہ اکنامک اگر مولوی کی آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس پر ہم نے پوری بات آپ سے کی کہ ہماری معاشی حالت جو ہے وہ آہ بھرنے کے بجائے، دوسروں پر کسی تھوپنے کے بجائے عوام کے ہاتھ میں اس معاشی حالت کو سدھارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، لیکن وہ اس کو نہ استعمال کر کے دوسری باتیں سوچ رہے ہیں۔ یہاں تک بات ہوئی ہے نا؟ اچھا، اب یہ پہلا جو گروہ ہے جو خیر خواہ ہے، اس کے دماغ میں ایک بات اور آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو یہ اس دنیا میں سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک الگ مخلوق یہ ہے اور ہم ایک الگ مخلوق ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ جو یہ عصری تعلیم والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارا بہت احترام کرتے ہیں، ہم کو سلام کرتے ہیں، ہمارے سامنے جھک کر باتیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مخلوق الگ ہے۔ اسی لیے جب ہم سے کبھی وہ باتیں کرتے ہیں تو ہم اگر ان کو کوئی بات سمجھانا بھی چاہتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے ہیں۔ وہ اس لیے جواب نہیں دیتے ہیں کہ آپ کی باتیں اس لائق ہی نہیں ہیں کہ جس پر کوئی ڈسکس کیا جائے، کیونکہ آپ کے بارے میں انہوں نے الگ سے ایک مخلوق مان لی ہے۔ یہ بات ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے مولویوں کو کہ ہم فارغ ہونے کے بعد، ہم اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس دنیا میں پیوند کی طریقے سے لگ رہے ہیں کہ ایک الگ کوئی پارٹ ہے، وہ بن گئے ہیں، ہم اس دنیا میں سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب اس مسئلے کا حل ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، ہماری طرح ہزاروں لوگوں نے تسلیم کر رکھا ہے۔ تو جن لوگوں نے نہیں تسلیم کیا ہے، ہر دھرمی پر ہیں کہ نہیں صاحب ہم ہی سب سے زیادہ ہیں، ہمارا علم سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تقریریں کر لیجئے، دلائل دے لیجئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ S7 کے نیچے، ٹرین کے نیچے کھڑے رہتے ہیں اور ٹی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ S7 کہاں ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ میں بہت ایڈوانس ہوں، سب کچھ ہے، لیکن ہماری حرکتیں
एक मौलवी को गाड़ी में हम बैठा लेते हैं, हम कहते हैं दरवाजा खोलो, उतरो। उसको ये नहीं आइडिया लग पाता है कि ये दरवाजा खुलता कहां से है, वो नहीं खोल पाता दरवाजा। अब सामने वाला जो बैठा हुआ बंदा है, अगर वो मौलवी नहीं है, मौलवी है तो समझ लेगा कि तो अपना ही बंदा है, ठीक है। लेकिन जो मौलवी नहीं है वो आपके बारे में एक राय रख रहा है कि ये दुनिया में सुटेबल कौम नहीं है, ये दुनिया में सेट नहीं हो पा रही है। तो ऐसी हम हजारों हरकतें करते हैं। उस हजारों हरकतें करने की वजह से हम मजबूरन हम नहीं तस्लीम करना चाहते हैं कि हम सेट नहीं हो पा रहे, लेकिन हकीकत का इनहराफ करके शुतुरमुर्ग के तरीके से हम अपने आप को सर नीचा कर लें कि हम किसी को नहीं देख रहे हैं, लोग भी हमको नहीं देख रहे हैं, तो ये कोई होशियारी की बात नहीं है। लिहाजा ये हम मान लिया हमने कि हमारा ये निसाब हमको इस दुनिया में सेट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी खैर ख्वाह लोग हैं। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है। हम इस सिलसिले में चंद बातें करना चाहते हैं। बड़ी तफसीली बात है और बहुत ही दिलचस्प बात भी है। हकीकत में क्या है कि बहुत छोटी सी चीजें हैं, अगर हमको बता दी जाए तो हम मसाइल पर, क्योंकि हम जो किताबें पढ़कर आते हैं शार्प हम बहुत होते हैं, समझते हैं बहुत तेजी से बातों को। शर्त यह है कि हमको जरा से क्या है, आप चिंगारी लगा दें, हम पूरी बात समझ जाएंगे कि ये मामला ऐसा है। लेकिन वो टच करने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई टच करे। तो ये नहीं है कि बहुत बड़ा मसला है, मसला इसको हल किया जा सकता है। फारगीन के लिए ये मेरी अपनी जाती राय है और उस राय के तहत जो है वो हम कोशिश भी कर रहे हैं, कामयाब कितने होते हैं अल्लाह। उसमें सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इन फारगीन को सनद उस वक्त तक न दी जाए जब तक कि ये एक ब्रिज कोर्स के नाम पर कोई कोर्स न कर ले। वो ब्रिज कोर्स के जरिए क्रॉस करके ये दुनिया में पहुंच जाएं और दुनिया में क्या है एडजस्ट हो जाए। उसके 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। स्पेशलिस्ट को कॉल करके लेक्चर दिलाया जाए, मतलब एक आदमी सफर का माहिर है, थोड़ी सी बात है, मिसाल के तौर पर एक बोर्डिंग पास हवाई जहाज का लिया जाए, 5 मिनट में यह बताया जा सकता है कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो किस मरहले से आपको गुजरना होता है, और सारे एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान के वही मरहला है। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, ये इसके लिए साल भर अगर आप कर देंगे तो एकदम मास्टर हो जाएंगे। इसी बात में नहीं, सारी चीजों को आधा घंटा 1 घंटे के लेक्चर से बहुत कुछ बता करके ब्रिज कोर्स 1 साल में 1.5 साल में कंप्लीट किया जा सकता है। अगर ये ब्रिज कोर्स, हम एक एक बातें कर रहे हैं आपसे कि क्या क्या ब्रिज कोर्स में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम बताते हैं कि एयरपोर्ट पे कैसे कैसे होता है, तो उस आदमी को आप लेकर के आइए, लेक्चर दिलाइए जो सफर कर रहा है और मौलवी भी हो। आप मुझे लेकर के आए, मैंने कहा देखिए जब सबसे पहले आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपका जो टिकट है उसी के नाम के साथ आपका आई कार्ड होना चाहिए। अब अचानक आप जब पहुंचे वहां गेट पर, वो कह रहा आई कार्ड कहां है। अब ये इतना बौखला गए उस आई कार्ड में देखने में कि एकदम पर, हालांकि छोटी सी बात है कि पहले से मालूम होना चाहिए कि हमको टिकट के साथ आई कार्ड रखना है। टिकट जब पढ़ाए उसी वक्त उसको आई कार्ड पकड़ा दे, ना वो ज्यादा पूछेगा ना जानेगा, वो जान जाएगा कि बंदा वेल एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है। ये पहला स्टेप होगा जो आपको सिक्योरिटी से। अब आप जब अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद दूसरा स्टेप, कुछ एयरपोर्ट पर कुछ होता है, कुछ एयरपोर्ट पर कुछ होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप अपने सामान को स्कैनिंग कराएंगे कि मेरा सामान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गैर कानूनी है, करा ले आप, ये बता दिया जाए उसको। नंबर 3, अब आप काउंटर पे जाएंगे। काउंटर पे जाने के बाद आप अपना टिकट और आईडी दोनों एक साथ दे दें, और देने के बाद वो आपको क्या पूछेगा कि आपके पास लगेज यही इतना है और है, आप उसको बता दें 1 बैग है 2 बैग है। वो कहेगा हाथ में कुछ ले जाना चाहते हैं, हाँ साहब ये हाथ में जाएगा। वो हाथ के लिए एक टैग देगा, आप उसको लगा दें और बकिया आप लगेज में डाल दें। जब वो लगेज में डाल देगा तो आपको एक स्लिप दे देगा। वो स्लिप आपके हाथ में देने के बजाय, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो टिकट आपने उसको दिया, उसने आपका टिकट चेक करने के बाद वापस कर दिया और वहां पे टिक मार दिया। अब प्रिंट आउट निकला बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास के पीछे उसने क्या किया, जो लगेज का स्टिकर था वो उसने यहां पे चिपका दिया, पीछे चिपकाएगा वो। अब आप उससे पूछेंगे कि मेरा जो सामान आपने लिया उसका कैसे मालूम होगा हमारा सामान कहां जा रहा है?
आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे स्टिकर चिपकाया गया है। आप उससे पूछे नहीं, आपने पूछ करके ये बता दिया कि हम सुटेबल आदमी नहीं हैं, हम दूसरी मखलूक हैं, तो वहां पर ये इतनी बात बता दी जाए कि स्टिकर उसके पीछे लगा रहता है। अब उसके बाद जो चौथा मरहला होगा वो स्टिकर में आपको सबको बताएगी, वो बोर्डिंग पास देगी कि देखिए आप ऐसे सर्कल खींचेगी हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पे, बाहरी एयरपोर्ट पे तो नहीं बताएगी, वो समझते सब पढ़े लिखे हैं। हिंदुस्तान में अभी भी वो जानते हैं कि किसका क्या क्राइटेरिया है, तो वो निशान लगाएंगे, देखो ये एयरपोर्ट, ये गेट से आपको जाना है और ये आपका टाइमिंग है कि इस टाइम पर आपको इस गेट पर पहुंच जाना है। वो आप देख करके, अब यहां से जब आप निकलेंगे तो आपको एक दूसरी सिक्योरिटी से मामला होगा कि जो आपके हाथ का सामान चेक करेगा और आपका बोर्डिंग पास चेक करेगा कि आप सही जगह जा रहे हैं, सही नंबर पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आपको पूरी, अब वो जब वो चेक करेगा सिक्योरिटी वाला, तो अब आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें वो चेक करेगा। इसलिए सबसे बेहतर क्या है, पूरे जेब में कुछ भी नहीं रखें, एक छोटा सा वो बैग होगा या बास्केट होगी, उसमें आप अपना सामान डाल दें, एक अपना सिर्फ बोर्डिंग पास ले ले और लेकर के बच्चा सामान डाल दे, वो स्कैनिंग में चला जाएगा। आप अपना बोर्डिंग पास लेकर के खड़े हो जाएं, अपने हाथ दोनों उठा ले, वो आपको चेक करेगा, ठप्पा मारेगा। अब आप जाकर के इत्मीनान से ये देख लें कि जिस गेट पे हमको जाना है वो कहाँ है, चाहे पूछ लें और चाहे गाइड से। अब गेट पर आप पहुंच गए, जब आप गेट पर पहुंचेंगे तो ये आखिरी मरहला है कि वहां पर एक सिक्योरिटी वाला होगा, सिर्फ अब आपको टिकट की कोई जरूरत नहीं, टिकट लेकर पूरी फाइल ले लेकर के लोग खड़े वहां, उसको सिर्फ देखना है बोर्डिंग पास। आप बोर्डिंग पास लेकर के खड़े हो जाए, वो आपका बोर्डिंग पास देखेगा, फ्लाइट नंबर देखेगा कि ये सही आदमी है, जा रहा है। अब आप फ्लाइट में ले जाकर के आपको बैठाने के लिए बस के जरिए या डायरेक्ट फ्लाइट अगर लगी होगी प्लेटफॉर्म पे तो आपको बैठना है। ये इतनी ही बात समझानी है जिसको ना करके हम पूरी जिंदगी बताते हैं कि हम गैर सुटेबल आदमी हैं। कितना टाइम लगा इसमें? 4 मिनट लगा है। कितना लगा है? 4 मिनट में अगर हम ये 2-3 मरतबा बता दें तो आप हमसे ज्यादा इस बात को जान जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये ब्रिज कोर्स में हर चीज को बताया जाए। मिसाल के तौर पर फिजिक्स क्या चीज होती है, फिजिक्स नहीं पढ़ना है। जब कोई फिजिक्स के बारे में बात करे तो आप भौचकाए हुए नहीं रहे। फिजिक्स की बुनियादी बातें 1 या 2 लेक्चर में बता दिए जाए। केमिस्ट्री का मेन फन क्या है, केमिस्ट्री किस चीज के बारे में डिस्कस करती है, बायोलॉजी किस चीज के बारे में डिस्कस करती है, सामाजिक विज्ञान, गैलेक्सी है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दुनिया है, वो क्या होती है, उसमें कब कहां तक हमारी खोज हो चुकी है, हम सूरज पर पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, चांद पर गए हैं तो गए हैं कि नहीं गए। 1-2 लेक्चर, एक मास्टर साहब बैठे हुए हैं, आप इनको 2 मरतबा लेक्चर बुला दीजिए, आपको सारी बात समझा देंगे। तो साल भर में 2 लेक्चर में आप पूरी गैलेक्सी के बारे में बुनियादी बात जान सकते हैं। 1 लेक्चर में रेलवे के बारे में और एयरपोर्ट के बारे में सारी बातें जानी जा सकती हैं। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, इन सब के बारे में बुनियादी बात बता दी जाए, ठीक है। उसके बाद मैथ आता है। मैथ बहुत हाई फाई चीज है। मैथ में सिर्फ इतना बता दिया जाए कि जोड़ किसे कहते हैं, कब जो है वो इंटू किया जाता है और कब डिवाइडेशन किया जाता है, कब मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 3-4 बातें हैं 1 घंटा 1.5 घंटे के लेक्चर में आप उनको, अब वो हम कहते उनको बताया गया ज़र्ब, अब आप बोल रहे हैं इंटू, अब वो इंटू और ज़र्ब टकरा रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं मौलाना साहब। मैंने बोला 5 को 8 से इंटू कर दीजिए। अब वो हमें नहीं मालूम हो रहा है कि ये तो वो आदमी है जो सूटेबल ही नहीं है इस दुनिया के लिए, हमने ज़र्ब के बजाय इंटू का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने आप को जो है ना वो गड़बड़ नहीं करें। ये ब्रिज कोर्स से मुराद मेरी है। अब मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कौन लोग वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नीचे से ग्राम पंचायत से लेकर के आप राज्यसभा के मेंबर तक और प्रेसिडेंट तक 2-3-4 लेक्चर में बता दिया जाए कि इलेक्शन कैसे होते हैं, कब इलेक्शन में आदमी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपके अंदर सलाहियत नहीं है। ये सारी बातें उसको बता दी जाए। अब अगर फारिग होने के बाद ये बंदा जब मार्केट में जाएगा तो वो ये कहेगा कि ये तो मुझसे ज्यादा जानता है, क्योंकि जिसको आप बहुत मुतासिर हुए हैं वो नील हैं, वो सिर्फ टाई लगा करके आपके ऊपर रोक डाल रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं उनको। जब हम लोग चलते हैं जैसे टोपी लगाए हुए, तो हमसे फौरन जब बर्ताव करते हैं, जहां भी पहुंचते हैं तो ऐसा बर्ताव करते हैं कि एकदम मौलवी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। जैसे वो मौलवी की तरह बर्ताव करते हैं, फौरन हम खट से क्या बोलते हैं, एक जुमला अंग्रेजी बोलते हैं, व्हाट डू यू वांट। जैसे हम कहते हैं व्हाट डू यू वांट,
1 सेकंड में वो समझ जाते हैं कि हमने गलत स्टेशन पकड़ लिया है। 1 मिनट में वो हमसे सीधे बात करना शुरू कर देते हैं। रेलवे में घुसते हैं, कहते हैं मौलाना साहब, खान साहब, कभी मौलाना साहब, ये सेकंड एसी है। उसे मालूम है कि ये कहाँ आ गया, तो जनरल में बैठने वाला बंदा यहाँ का सेकंड एसी में कहाँ गया। उससे हम ये नहीं बोलते कि भाई साहब मेरे पास सेकंड एसी का टिकट है। ये वक्त ऐंठने का है, कॉलर झाड़ने का। ऐसा ही नो वेरी वेल, आप एक बार तो ऐसे बोलेंगे, अब वो आकर आपको सलाम बोलेगा, सर क्या बात है। लेकिन आप नहीं, मेरे पास ये सेकंड क्लास में, ये तरीका नहीं है गुफ्तगू करने का। मोमिन नब्बाज होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर कुफ्र, काफिर और मोमिन एक मेड़े पर चल रहे हो और तुमको मालूम हो कि यहां इस्लाम का रौब दिखलाना है, तो काफिर को मजबूर करो कि वो उतरे, आप उतरिए नहीं। यहां पर अखलाक नहीं शो करना है। दूसरी जगह अखलाक भी हमको बताया गया है कि अखलाक कैसे शो होता है, लेकिन यहां पर जहां पर वो आपको निचला दिखाना चाहता है, वहां पर आप अपनी कलर झाड़िए और उसको बताइए कि मोमिन किसे कहते हैं। हम हमारे रसूल अकरम हैं, हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं जिसने हमारी जिंदगी को बैलेंसिंग वे में रखा है, हमारी जिंदगी को इनबैलेंस नहीं किया। नहीं हर जगह सर झुका लो, हर जगह सर झुकाने की बात नहीं भाई साहब। तो ये जो ब्रिज कोर्स अगर बता दिया जाए, तो मैंने ये इसमें चंद बातें लिखी थी कि जबान थोड़ी मोड़ी जाने आदमी, मुल्क का आईन जाने। एक दिन यहां पर पुलिस वाले आ गए रात में, कहने लगे कि दरवाजा खोलिए। मैंने कहा आपके पास सर्च वारंट है? एनी पुलिस हैव नो राइट टू ओपन द डोर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। आपको मालूम है बात, इसको सर्च वारंट कहते हैं। इसीलिए जब वो आपके घर से किसी को उठाते हैं तो पेपर में दूसरे दिन क्या आता है? पेपर में आता है कि रेलवे स्टेशन से हमने उठाया। अब आप चिल्लाते, अरे मेरे घर से उठा के लेके, वो दिखला नहीं सकता आपको घर से उठाया गया है। घर से उठाने के लिए अगर औरत तय कर ले मुझे दरवाजा नहीं खोलना है, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि आपका दरवाजा खोल दे, लेकिन शर्त उसको मालूम हो जाए कि आप ये रूल जानते हैं। आप जैसे बोलेंगे कि आपके पास सर्च वारंट है, आप कैसे आए मेरे दरवाजे पर, मैं कंप्लेन करूंगा कि हमारे यहां डकैती डालने आए थे, उनकी हवा खराब जाएगी। लेकिन आप भैया सरकार बाबू, तो भैया सरकार बाबू करोगे तो यकीनी बात है, आपने देखा है कुत्ते किसी मोहल्ले में जाते हैं, बात कुत्ते डापट होते हैं, दूसरा कुत्ता बहुत तेज आता है, अगर उसने दुम झुका लिया तो सब एक साथ अटैक कर देंगे, और अगर उसने खड़ा हो गया, एक कुत्ते 10 रहेंगे, एक नहीं आना है। ये डेली हमारी जिंदगी में ये सब क्यों? आप नसीहत हासिल कीजिए, कुत्ते से भी नसीहत हासिल होती भाई। आप देखें कि जिंदगी गुजारने का क्या क्या तरीका हमारा है। तो मैं वो जो खैर ख्वाह लोग हैं, वो आपके ये जो बात कह रहे हैं कि हम दुनिया में सेट नहीं हो पाते हैं, ये एक हकीकत है, उसके लिए ये ब्रिज कोर्स हो तो जबान जानी जाए। ये चंद बातें जो मैंने आपको बताई जनरल नॉलेज के तौर पे डाली जाए। अदालत का पूरा निजाम मालूम है, पहले केस कहां पड़ता है, फिर अगर वहां से हम केस हार जाते हैं तो दूसरा ये क्या है, एक वकील को ला करके एक दिन लेक्चर करा देना है कि भाई आप जब केस करते हैं, फिर केस की 2 तरीके होते हैं, एक सिविल अदालत कहलाती है, क्राइम अदालत कहलाती है। ये सारी बातें कोई बहुत आपके लिए तो कतई बड़ी नहीं है, बकिया सबके लिए बड़ी है। जो आदमी कुरान करीम की 6666 आयतें मुतशाबिहात के साथ याद कर सकता है, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। नोट कर लें, दुनिया का कोई भी काम वो कर सकता है। लिहाजा ये ब्रिज कोर्स के नाम पर कारपोरेशन का निजाम कैसे चलता है, सियासत का निजाम कैसे चलता है, समाजी विज्ञान किसे कहते हैं, ये सारी बातें आसानी से सीख ली जा सकती हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए कि ये हमारे खैर ख्वाह हैं और हमको ब्रिज कोर्स के नाम पर एक कोर्स तैयार करके फारिगीन को उससे गुजार करके फिर आप अपनी शहादा दें कि आप इस लायक हैं कि अब मुआशरे में जाइए और नाक ऊंची करके गर्दन उठाकर जिंदगी गुजारिए। बात समझे मेरी जो कहना चाह रहा हूं, ये एक बात है। अच्छा, ये वो तबका है जो खैर ख्वाह है। इसमें एक तबका ऐसा है जिसका मैंने कल जिक्र नहीं किया, ये नोट के तौर पर मैंने लिखा है कि हम फारिगीन खुद जाती तौर पर अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। इसमें जब हम खैर ख्वाह, जब हम ये तो खैर ख्वाहों की बात खत्म हो गई, ये बीच में एक बात हमको आपको बतानी है कि हकीकत में हम लोग इस तरीके से अपने आप को फारिग होने के बाद समझते हैं कि हकीकत में हमारे अंदर कोई ना कोई क्या है, कमी आ गई है।
मुझे क्या होती है, असल ये बात हमारे अंदर ये जो पैदा होती है, वो हम जब माशी हालत से बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं ना, तो सब हम अपने उस इल्म को गालियां देने शुरू करते हैं जिसको हम पढ़ करके आए रहते हैं। हम ये नहीं पता पाते हैं कि हकीकत में क्यों हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है। तो लिहाजा इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हमारे अंदर बात पैदा हो रही है कि साहब हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा हो गई है, ये एहसास कमतरी की वजह जाने। तो पहली वजह तो क्या है कि माश का मामला है, उसके बारे में मैंने पूरी बहस की कि उसको कैसे हल किया जाए। दूसरी वजह क्या है कि जब हम गौर करते हैं और ज्यादा थोड़ा से कि हम इस सोसाइटी में क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हम पिकअप ले पा रहे हैं, तो हमको हमारा नफ्स जवाब देता है कि मौलाना साहब आप जो सिलेबस पढ़ करके आए हैं, जो निसाब पढ़ करके आए हैं, उस निसाब के अंदर दम नहीं है। ये हमको खुद हम मौलवियों को हमको बताता है। ये एक लंबी चौड़ी कहानी है। ये दुनिया का एक ऐसा निसाब है कि लिखने वाले ने इस नियत से किताब ही नहीं लिखी कि मेरी किताब पढ़ाई जाएगी। मौलवी मैं उलमा से ये बात कर रहा हूं, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, चंद किताबें अब नीचे लेवल की हैं कि जो हम लोगों की ऐसी शिकायत की बुनियाद पर उन्होंने बच्चों के लिए किताब लिख दी, वरना जितनी किताब आप पढ़ रहे हैं कोई किताब लिखने वाले ने आपके लिए किताब ही नहीं लिखी है। ये ऐसा सिलेबस अजीबोगरीब सिलेबस है। अब यकीनी बात है कि जब लिखने वाले ने आपको सामने रखा ही नहीं है, वो अपने इल्म को क्या करना चाहता है, अपना रोब डालना चाहता है, तो इल्म का रोब पढ़ने की वजह से हमारे सारे तलबा पूरी जिंदगी इबारत हल करने में लगाते हैं और असल मसला समझ ही नहीं पाते हैं। इबारत हल करने में बहुत तगड़ी इबारत हल करते हैं, वो किसका इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन आप देखिए केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसमें अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर वाला किताब को उठा ले और उठाने के बाद उसमें इंग्लिश लिटरेचर के लिहाज से गलतियां निकालना शुरू करेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब में बहुत सी गलतियां निकाल देगा। लिखने वाले के दिमाग में क्या है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। लिहाजा वो इजी से इजी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है कि बच्चा लैंग्वेज में उलझने के बजाय मसले को जानने की फिक्र करे, क्योंकि वो लिखी गई है किसके लिए, तलबा के लिए लिखी गई है। हमारी जितनी किताबें हैं, कुदूरी है, हिदाया है, जलालैन है, जितनी किताब आप पढ़ते हैं दूसरी जमात और उसके ऊपर, कोई किताब लिखने वाले ने हमारा इरादा करके नियत किया ही नहीं है। ये बड़े आसानी से ये हम चाहें कि इस मसले को हल कर लें तो कर सकते हैं। हम इसको हल करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर खुद एहसास कमतरी है और हम अपने निसाब को कोसते रहते हैं कि ये निसाब की वजह से हमारा मामला बिगड़ा है। इस सिलसिले में संजीदगी से जो तालिब फारिग होते हैं वो अपने बड़ों से बात करें, इतना माहौल बनाएं कि लोग मजबूर हो करके, हम ये नहीं कह रहे कुदूरी बेहतरीन किताब है, हिदाया बेहतरीन किताब है, आप हिदाया को उसी मसले को रखते हुए मॉडर्नाइज अंदाज में एक्सरसाइज के साथ, कामा और फुल स्टॉप के साथ, सवालिया निशान के साथ, चैप्टर को तरतीब के साथ लिख दिया जाए। सारा लिखा जा रहा है कुछ, लेकिन अभी भी मुखालफत उससे ज्यादा है कि साहब क्या है, इतने बड़े बड़े लोग जो है नहीं समझते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जहां पर ये बात आ जाती है वहां कोई मसले का हल नहीं होता है। बड़े बड़े जहां आ गए, इसीलिए कुरान मजीद कहता है कि क़यामत में भी ये जब अल्लाह ताला कहेगा कि बाबू तुमने गुमराहियां कहां से हासिल की, तो कहेंगे इन्ना सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला, ये बड़ों ने हमको बर्बाद किया है। हमको किसने बर्बाद किया है? क्यों? आपने ये तय कर रखा है कि बड़े गलती नहीं करते हैं, बड़े बड़ी बड़ी गलती करते हैं, छोटे छोटी छोटी गलती करते हैं। कोई भी इंसान गलती से पाक नहीं है। नबी को अल्लाह मासूम रखता है, नबी के नीचे फिर क़यामत तक कोई पाक नहीं है, सबसे गलती होने के चांसेस हैं। तो हम खुद इस बात पे मुलव्विस हो जाते हैं और वो नजरिया जो खैरख्वाहों का है कि हमको मॉडर्न होना चाहिए, हम भी उसी में क्या है नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के उनके साथ शामिल हो जाते हैं। आप इस मसले को हल करने की फिक्र करें। निसाब में प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं कि निसाब में किताबें बदल दी जाएं।
آپ اسی किताब को रखना चाहते हैं, बड़ी अच्छी ना होती तो 300 साल से कैसे आपको एडजस्ट करती. किताब तो बहुत अच्छी है वो भाई, जो किताब 300 साल से लोगों को एडजस्ट कर रही हो, किताब तो अपनी जगह बड़ी उम्दा है, लेकिन वो किताब लिखने वाले ने चूंकि हमारे लिए नहीं लिखी, उसको ऐसा कर दो, उसी किताब को अपनी जगह रख करके उसको सही कर लो. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, एकेडमी बनानी पड़ेगी, जो बैठ करके हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि किताब छापनी पड़ेगी. आपको मालूम है, आप दुनिया में मौलवी की किताब के साइज की कोई किताब नहीं छपती दुनिया में. आपको मालूम है, बुखारी 1.5 फीट की छपती है, हिदाया 1.5 फीट की छपती है. क्यों भाई, क्यों छपती है मालूम आपको? और क्यों किताब की शक्ल में नहीं छपती है? जिसने पहले आदमी ने छापा उस वक्त कागज की सख्त शॉर्टेज थी. कागज जितना बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा उतना सस्ती पड़ेगी किताब. कागज जितनी कटिंग होगी उतना किताब क्या होती जाएगी, महंगी जाएगी. अब पहली मर्तबा जिस आदमी ने लेथू पर छापा है, ऑफसेट पे नहीं, लेथू पे छापा है, वही लेथू पे किताब आज भी छप रही है. लेथू को फोटो लेकर के छाप दिया, लेकिन लेथू को सही नहीं किया. जो लिखने का अंदाज है, मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, ये तो आपको सही बात बता रहा हूं. लिखने का जो अंदाज है, कभी आप आइए, हमको दिखलाएंगे. हम ऐसी किताब पढ़ते हैं कि जिसको चारों तरफ से पढ़ा जा सकता है. वैसे ये किताब है, हमने लिखा है, हम कैसे पढ़ सकते हैं? हम अगर इधर चले जाएंगे तो इसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे पास ऐसी किताबें हैं कि हम इधर जाके भी पढ़ सकते हैं, और अगर हम इधर बैठ जाएंगे तो भी पढ़ सकते हैं, और इधर बैठ जाएंगे तो भी पढ़ सकते हैं. ये सारी किताबें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जो 4 साइड कैन बी रिसाइट. वो किताब को किताबी शक्ल तक नहीं दे पा रहे हैं हम, उसी को लगातार किए चले जा रहे हैं. हालांकि उसको ये तो एक छोटी सी बात है, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम मुसलमान, उसे पैसा लगेगा, दोबारा पूरी लिखाई करनी पड़ेगी, फिर ऑफसेट होगी, फिर छपेगी, तो उसमें बड़ा पैसा है. सब जगह पैसा लग रहा है, लेकिन यहां पैसा लगने के लिए तैयार नहीं है. हालांकि हम आवाम को कितना समझा ले जाते हैं कि देखो ये मस्जिद है, इस मस्जिद में संगमरमर लगाना है, 5 लाख का लगेगा, लोग दे देते पैसा. ऐसे हम समझा करके उन किताबों को भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं जान रहे हैं कि हमारी किताब में कोई ऐब है कि नहीं है. अब उसमें देखिए, बाद लोग किताब ले करके जब चलते हैं तो खैर दारुल में या दारुल के तलबा तो बहुत एहतराम करते हैं उन किताबों का, और सीने से लगा के चलते हैं उस किताब को हमेशा. क्योंकि अगर आप ऐसे लेकर के चलेंगे तो बेइज्जती होगी. किताबों का बड़ा एहतराम किया जाता है और सीने से लगा के चलते हैं. बाद ऐसे मदारिस भी होते हैं कि वो इतनी वजन होती है उसको साइड में लेकर के चलते हैं, ऊपर सीने से लगा के नहीं लेके चलते हैं. तो बहरहाल हमारा ये कहना है कि हम मौलवियों के अंदर भी एहसास कमतरी इस बात की होती है कि हम जब तक मॉडर्न नहीं होंगे तब तक हमारा मसला हल नहीं होगा. तो एक बही ख्वाह लोग अपनी जगह हैं और हम लोग अपनी जगह हैं. ये जो निसाब के बारे में हमने बात किया है कि इसमें तब्दीली, मैं चाह रहा था कि इसके बारे में हम पूरी राय आपको रखें कि निसाब किस तरीके से. हम इस बात के भी कायल नहीं हैं, हमसे मुराद एक पूरा ग्रुप है, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि निसाब तब्दील हो जाए. हमने जो ब्रिज कोर्स की बात की सिर्फ उतना ही हम चाह रहे हैं. हमारा निसाब अपनी जगह बहुत अच्छा है, उसको किताबी शक्ल दे दी जाए और उसको इस अंदाज में लिख दिया जाए जिस अंदाज में बच्चों को पढ़ाया जाता है. और मजे की बात यह है कि तकरीबन इन किताबों का आधी किताबें अरब दुनिया ने छाप रखी है और उसका अंदाज बदल दिया है, एक्सरसाइज की शक्ल में आ चुकी है किताबें, लेकिन हम उनको यहां पे लाने के लिए तैयार नहीं. हम समझ रहे हैं इसी में बरकत है, ऐसे ही रहनी चाहिए. ये हमको अपने नजरियात को बदलना चाहिए. तो ये बीच में ब्रैकेट की बात आ गई कि हम खुद भी वजह हैं कि हम चाहते हैं मदरसे को मॉडर्न होना. इंशाल्लाह हम क्योंकि 30 मिनट बात कर चुके हैं, इंशाल्लाह जिंदगी में तो कल हम इस पर यह बात करेंगे कि वाकई में ये सिलेबस में कमी है या हमारे लोग जो हैं वो, क्योंकि मदारिस वाले इसमें दो हिस्से में बटे हुए हैं जब निसाब की बात आती है. एक तबका एकदम बोलता है कि निसाब बदलना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, हिलना नहीं चाहिए. तकरीरें करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं. दूसरा क्या है, टोटल बदल देना चाहिए. होता क्या है कि जब एक आदमी एक राय रखता है ना, तो रिवेंज के तौर पर अब हमने राय रख ली
یہ دونوں غلطی ہو رہی ہے، دونوں افراط اور تفریط۔ اس کے درمیان کا ایک راستہ ہے، جو پہلے لوگ ہیں ان کو بھی ہم مشورہ دینا چاہتے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس پہ مشورہ دیں گے دونوں پارٹیوں کو کہ اگر نصاب آپ کی جو رائے ہے کہ ایک دم نہیں بدلنا چاہیے وہ کتنا صحیح ہے، اور ایک دم بدل دینا چاہیے اس کے کیا نقصان ہے۔ انشاءاللہ اس پر زندگی رہی تو بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ باتیں جو لوگ سنیں گے، کچھ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی، کچھ لوگوں کو بہت خراب لگے گی۔ سب کو اچھی لگے تو سمجھ جاؤ بہت زیادہ خراب ہے، یہ سمجھے بات۔ سب کو اچھی لگے تو سمجھ جائیے زیادہ خراب ہے، اور سب کو خراب لگے تو سمجھ جائیے واقعی میں خراب ہے۔ کچھ کو اچھی لگے اور کچھ کو خراب لگے تو اس کا مطلب کہنے والا صحیح ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔